यमुना तीरावनचारी माधव सुंदरी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga. Creating things. Jaya Jagannath Swami Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra. Creating so many. Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Tila Prabhupada. We want to know. But we're trying to know according to our own speculative. Kalivapana Harinama Sankirtan ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Actually wanted to create something that would be for the greatest benefit of humanity. He wanted to set the stage in which he could keep people alive forever. Some lecture is going on, I think. Bring the dead back to life. He had good intent. I think it's connecting with something, correct, no? Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuvannmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminyate Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो इधर सम्मिलित भक्तों में कितने भक्त लोग अभी भगवद गीता के पहला दूसरा अध्याय अटेंड करते हैं क्लास इधर?
अभी रिसेंटली आप लोगों ने ज्वाइन की है, कितने भक्त लोग ऐसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और कितने भक्त लोग पहले से आए हैं और 16 माला करते हैं आप जपा? ऐसे कितने भक्त लोग हैं? ठीक है, 16 माला करने वाले, ठीक है। कितने भक्त लोग 8 से 12 माला के अंदर करते हो? 8 to 12 राउंड्स, ठीक है। कितने लोग 4 से 8 कितने भक्त लोग करते हैं? हाँ, राइट राइट राइट, वेरी गुड। कितने लोग 1 से 3 माला करते हैं? ओह, राइट 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 राइट, 1 से 3 ज्यादा, वेरी गुड। And this 1 to 4 round, those are chanting Prabhu. They have been coming for some time. How long they must have been? About 6 months, 6 months to 1 year, something. अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया है कि ध्वनि जो होता है, ध्वनि, ये नाद ब्रह्मम ओम है, उसके वाइब्रेशन से ये सारे दुनिया का सृष्टि हुआ है। भगवान हरि जब इस दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं, वो ध्वनि से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से एक्शन चालू हो जाता है, क्रिया, हाँ? सारे दुनिया का निर्माण होता है इस दुनिया में। और दुनिया में आने के बाद आप देखेंगे हम लोग भी जैसे अगर कोई सिविल इंजीनियर कॉलेज में जाकर बैठता है, वो सुनकर समझता है कि कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, ब्रिज बनाना हो, बहुत बड़ा मकान बनाना हो, वो सीखता है। उसके बाद जो ज्ञान सीखा उसने ध्वनि के द्वारा, उसी ज्ञान को लेकर वो निर्माण करता है बहुत बड़ा ब्रिज, बहुत बड़ी इमारत, 20 माले का, 40 माले का खड़ा करता है ऐसे। तो इस तरह की एक ध्वनि से ये दुनिया का विस्तार हुआ है, और दूसरे ध्वनि से इस दुनिया को वाइंड अप करके एक जीव अपने स्वधाम लौट सकता है। ऐसे शास्त्र बताया है, वेदांत सूत्र में एक श्लोक है, ऐसे अनावृत्ति ही शब्दात् ऐसे बताया गया है। तो जैसे आपके मुख जो है, मुख का आप सही उपयोग कर सकते हो, गलत प्रयोग कर सकते हो आपकी वाक शक्ति का, करेक्ट ना? एक चीज, अगर आपके वाक शक्ति को सही सदुपयोग किया आपने, किसी के साथ अच्छा मैत्री जुड़ जाएगा, उनके साथ स्नेह जुड़ेगा, उसके बाद आप शायद वो आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे, और भी तरीके से आपका प्रगति हो सकता है। लेकिन अगर किसी को कटुवचन बोला, नहीं तो गाली दिया, तो आपको थप्पड़ मिलेगा, है? तो ये कि ध्वनि हमको नीचे लेके जाता है, दूसरा दिन हमको ऊपर उठाता है। 2 तरह के ध्वनि सब बताते हैं। जिह्वा तो वही जिह्वा है? हम इसका क्या उपयोग करते हैं, इसका सदुपयोग करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे एक चाकू होता है एक सर्जियन के हाथ में, वो भी कटता है, करेक्ट है, पेट को खोल कर। लोग डरते नहीं है, उनको मालूम है कि इसके हाथ में चाकू है, पेट को काट भी रहा है, लेकिन अच्छा आदमी है, हाँ? ये कुछ गलत नहीं करने वाला है। तो क्यों काट रहा है? पेट कुछ रिपेयर करेगा, अनस्थीसिया दिया है, तो वो मरीज व्यक्ति को ठीक करके तंदुरुस्त बना देता है वो। लेकिन वही चाकू चोर के हाथ में हो, हाँ? वो किसी को खून करके पैसा लूट कर भाग जाता है। इसी तरह से वाक शक्ति जो है, वाणी जो है, उसका सदुपयोग हो सकता है, उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो मायापुर में मैं कुछ 2-3 महीने के पहले एक बार गया था। उधर 300 बच्चे थे स्कूल के, हैं? ऐसे ये गुरुकुल के, उनके संडे को संडे स्कूल में तो लगभग 250-300 बच्चे आ जाते हैं। उन्होंने टीचर लोगों ने बोला मुझे बच्चों के लिए कुछ बताइए। तो ऐसे ही मैंने उनका प्रश्न पूछ दिया कि आप अपने मुँह का दुरुपयोग कैसे कर सकते हो? हाँ? हाँ, नहीं, बच्चे ने इतना निकाला, 10-12 आंसर निकाल दिया उन्होंने। अभी देखेंगे, आपसे सुनेंगे कितना आता है। मुँह का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, कोई बता सकते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, बोलिए माता। करेक्ट। तो मुख में डालने वाला पदार्थ ठीक ठीक होना चाहिए, करेक्ट है? ठीक है, और
कटु वचन बोलना, दूसरों को दुखित करना, दूसरों को रुलाना। रावण का मतलब है दूसरों को रुलाता है वो। सीता माता को भी रुलाया उसने, है ना? करेक्ट। ऐसे कटु वचन बोलना। और कुछ इसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है? जैसे आवाज उठाना, ऐसे बोलना। जैसे हम बोल सकते हैं हरि बोल प्रभु, ऐसे बोला सकते हैं, इसका बदले हरि बोल ऐसे अगर बोलता है कोई, है आवाज कोई उठा सकता है ना? ऐसे आवाज उठाना, कटवचन बोलना। और क्या है? हाँ, गॉसिपिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अफवाह फैलाना। हाँ, गॉसिप करने का मतलब है दूसरों के पर निंदा, हाँ, दूसरे लोगों के बुरा भला बोलना। क्या बोलते हैं? हाँ, वही है, उसको गॉसिप बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट। दूसरे के बारे में बुरा भला बोलना, ऐसा है वैसा है। और एक अफवाह फैलाना, करेक्ट है ना? अफवाह फैलाना ऐसे बोलना है, वो भी है ना? ऐसे अफवाह फैलाना सही। देखिए, दुनिया में 3 तरह के बात हो सकते हैं। आपको 100% मालूम है कि ये सही बात है, नहीं को आपको 100% मालूम है कि ये गलत बात है। तो तीसरा है, आपको सत्य है गलत है मालूम नहीं है, नॉट श्योर। यस बॉक्स, यस बकेट, नो बकेट, नॉट श्योर बकेट। हम ज्यादा जो लोग जो भी सुनते हैं हम इधर उधर, वो किस बकेट में बैठता है? नॉट श्योर में। जो नॉट श्योर का मतलब है जो सही की गलत है मालूम नहीं, उसके बारे में बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए। अफवाह नहीं फैलाना। हाँ? ऐसे एक व्यक्ति था, हम भागवत में पढ़ते हैं, सत्राजित नाम का। ये व्यक्ति को एक बार सूर्य देव से एक भेंट मिला उसको। उसको बोलते हैं शामंतक मणि। उसको गले में पहन लिया हो। ऐसे चकाचक पहन कर जब चल के हुए आ रहा था, कुछ लोग देखकर सोचा कि सूर्य ही उतर आ गया, ऐसे सोचे वो लोग। जाकर कृष्ण के पास बोले कि ऐसा दिख रहा हमको। तो कृष्ण ने दूर से देखा उसको, बोला कि ये सूर्य नहीं है, ये तो सत्राजित है, लेकिन सूर्य ने इसको एक भेंट दिया है। हाँ? तो अगर किसी को भी भेंट मिलता हो तो उसको राजा के पास जाकर सौंपाना चाहिए। तो राजा की अनुमति के साथ वो इस्तेमाल कर सकता है उसकी। लेकिन सत्राजित राजा को नहीं दिया, खुद लेकर अपने घर के अंदर चला गया और उसको पूजा करके उसके द्वारा उसको हर दिन ऐसे 30-40 पाउंड का सोना मिलता था उसको। सोना एकत्रित करते गया वो ऐसे ही। तो एक दिन उसके भाई प्रसेन अपने गले में पहनकर जंगल में ऐसे घोड़े के ऊपर सवार होकर जंगल गया हो। सोचा कि मैं अगर पहन कर मैं घूमूंगा, सब लोग मुझे देखेंगे और सोचेंगे कि मैं बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, है ना? लोग दिखाना चाहते हैं ना। लोग देखिए भोजन खाते हैं पेट की, शरीर की पोषण के लिए, लेकिन कपड़े पहनते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, करेक्ट है ना? इसलिए वो भी पहन कर गया हो। हाँ? जाते समय एक जानवर, एक शेर ने देखा उनको। शेर ने देखा क्या है चमक रहा है, ऐसे सोचकर शेर भागते हुए आया, फट करके उसको मारा। उसको घोड़े को भी मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया उसने। और शेर उसको उठाकर अपने गले में पहन लिया, शेर। हाँ? उसको इतने में जाम्बवान करके एक व्यक्ति उधर आ पहुंचा। उसने शेर को एक थप्पड़ मारा और वो ले लिया उससे। खुद पहन लिया, अपने गले में पहन लिया। पहन कर अपने महल में चला गया, गुफा में अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ, इस सत्राजित ने सोचा कि शायद, क्योंकि कृष्ण जो है उग्रसेन को बिठाया है ऊपर, है? तो कृष्ण ने किसी को तो बोला था कि सत्राजित के पास जो सामंत मणि मिला है उसको राजा को पहले दिखाना चाहिए करके उनने बोला था। मुझे लगता है कि इसलिए कृष्ण ने उसका चोरी किया होगा। किया करके नहीं बोला, क्या बोला? क्या होगा, हो सकता है। प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनम गतः, ऐसे बोला उन्होंने। हाँ, ये बोला कि प्रायः का मतलब है लगता है मुझे कि कृष्ण ने इसका चोरी किया होगा, इसे किसी को बोला उसने। हाँ? और कृष्ण ने निहतो, निहतो मतलब है उसने मेरे भाई प्रसेन को भी वध किया होगा। वो दूसरा दूसरा झूठ बोला। पहला झूठ बोला कृष्ण ने चोरी किया होगा, दूसरा झूठ बोला कि मेरे भाई को उसने उन्हें मारा होगा। हाँ? मणिग्रीवो वनम गतः, मणि को भी लिया होगा, मेरे भाई को भी मारा होगा, दो बोला। इस तरह क्या हुआ,
करने करने अजपन जना, एक कान से दूसरे कान में पहुंच गया। ये बात करने करने अजपन जना, उधर द्वारका के सब लोग बात करने लगे। अरे कृष्ण ने मार दिया बोल रहा है, अरे कृष्ण ने चोरी कर लिया बोल रहा है ऐसे। तब कृष्ण ने सोचा, या किंग्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, सीसस वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। ऐसे बोला है कि राजा के ऊपर कलंक नहीं होना चाहिए, दोष निर्दोष होना चाहिए राजा। इसलिए कृष्ण ने क्या सोचा, लोगों को निरूपण करना चाहिए कि मैंने इसका चोरी मैं नहीं किया हूं, और मैंने इनके भाई को भी मारा नहीं हूं। ये निरूपण करने के लिए भगवान ने क्या किया, भगवान जंगल चले। उन्होंने देखा उधर प्रसेन भी नीचे पड़ा है, घोड़ा भी मर के पड़ा है, शेर भी मर के पड़ा है, और ऐसे देखते देखते आगे गए भगवान। जब वो महल में पहुंच गए, किसके महल में, जाम्बवान के। अंदर जाने के बाद देखा एक बच्चा लेटा था पलना में, और उस बच्चे के ऊपर लटकाया था वो श्यामतक मणि को। किसने, जाम्बवान ने ऐसे। तो कृष्ण उधर आकर ऐसे खड़े हो गए। खड़े होते ही उधर जो नौकरानी थी, जो सर्वेंट मेड काम कर रही थी उधर, वो जोर से चिल्लाने लगी। वो सोचा कि कोई आया है और चोरी कर लेगा इसको, डर के मारे। आवाज सुनते ही जाम्बवान आ गया, और जाम्बवान ने देखा कृष्ण की ओर, क्रोधित होकर देखा उसने, कौन आया मेरे दरवाजे में ये चोरी करने के लिए ऐसे। देखिए जाम्बवान रामलीला में भी आते हैं, करेक्ट है ना, वो प्रभु रामचंद्र के प्रिय हैं जाम्बवान, लेकिन यदि कृष्ण लीला में आते समय वो कृष्ण को पहचान नहीं पाए, क्योंकि जब आप नाराज हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि टाटा बोलकर चला जाता है वो, बुद्धि निकल जाता है, क्योंकि इसलिए बोलते हैं एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, ऐसे बताया। तो क्योंकि नाराज होकर ऐसे रक्ते क्षण ऐसे लाल लाल आंखों से वो कृष्ण को देखा, उसने पहचान नहीं पाया कृष्ण को। तब उसने कृष्ण को बोला, इसको चोरी करोगे पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा तुमको। तो मल्ल युद्ध हुआ दोनों के बीच में, पाट पाट पाट। ये कृष्ण को मार रहा था, कृष्ण भी इनको मार रहे थे, मल्ल युद्ध हुआ दोनों का। कृष्ण तो हंस रहे थे, क्योंकि भगवान के अनेक रस हैं। एक रस है भगवान स्टंट में भी मजा लेते हैं, उनको भी अच्छा लगा है। तो पंच कर रहा था वो, भगवान ने भी उनको पंच किया। क्या हुआ, ऐसे करते करते इसका पूरा नस दर्द, नसों में हड्डियों में दर्द होने लगा। जामा नीचे बैठ गया। बोला उसने भगवान को, इस दुनिया में आज तक किसी ने मुझे पराजित नहीं किया है आपको छोड़कर, इसलिए मैं समझ गया कि आप साक्षात प्रभु रामचंद्र ही हो। आप में प्रभु रामचंद्र में कुछ फर्क नहीं है, ऐसे बोला उसने। तब उसको अकल आ गया, अभी समझ में आ गया उसको। तब भगवान ने मुस्कुराया, बोला जाम्बवान तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब ठीक कर दूंगा, है। तो भगवान ने उनके हाथ को पकड़कर ऐसे नसों को थोड़ा मसाज कर दिया, हाथ को, ऐसे मसाज करके उनके पहले जैसे था शरीर ऐसे हो गया, उनका सब ठीक हो गया। देखिए आजकल अगर किसी को दर्द हो गया तो मुंह ऐसा कुछ लगाते हैं, वो लगाकर निकालने के लिए, दर्द कुछ समय के लिए निकलता है वापिस आ जाता है, लेकिन भगवान ने पूरा निकाल दिया मसाज करके। उसके बाद जाम्बवान ने नमस्कार की भगवान को। नमस्कार करके उन्होंने बोला भगवान को, हे भगवान मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, मैं समझ नहीं पाया कि आप ही मेरे स्वामी हो, हाँ? उन्होंने बोला कि इस दुनिया में अनेक वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते हैं अनेक चीजों को, उनको लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो सब लोगों जो आविष्कार करते हैं वैज्ञानिक लोग, उनके मस्तिष्क देने वाले आप ही हो, हाँ? आइंस्टाइन ने भी, न्यूटन ने भी मस्तिष्क खुद का नहीं बनाया, उनको मस्तिष्क किसने दिया, कृष्ण ने दिया, भगवान ने दिया। सबको बुद्धि देने वाले हैं, इसलिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, है। सबको बुद्धि देने वाला मैं हूँ, बलम बलवताम चाहम, बल सब लोगों का बल मैं हूँ, सब लोगों का बुद्धि में हूँ, मैं ही देता हूँ, भगवान बताते हैं। तो उन्होंने बोला अपने सामग्रियों को भी दिया, हमारे अवयवों को भी दिया, मस्तिष्क भी दिया, इसलिए आपको प्राइज देना चाहिए, हाँ। तो इस दुनिया में आप ही प्रशंसनीय हो। ऐसे उसको इतना बुद्धि आ गया, उसको भगवान को ऐसे गुणगान किया उन्होंने। देखिए आप लोग जरा सोचिए आपके मोबाइल के बारे में, आपके हाथ में जो मोबाइल है, इधर से आप अमेरिका बात कर सकते हो, करेक्ट है ना, इधर से ये कॉल लगा सकते। उन दिनों में अगर हमको ट्रंक कॉल बुक करना हो तो 3 घंटे पहले बोलना पड़ेगा,
बुक करके उसके बाद बुलाएंगे वो लोग, आ जाओ अभी आपका कॉल आने वाला है। लेकिन आजकल अपने अपने मोबाइल लेकर अमेरिका में कनाडा में बात कर सकते हैं और वीडियो में भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी इतना बढ़ गया है। लेकिन एक सोचने की बात क्या है, इस दुनिया में भगवान ने अनेक वेव्स को बनाया है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एएम वेव्स, एफएम वेव्स, हाँ, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, एक्स रेस, ये सब बना कर रखा है भगवान ने। ये सब चीज क्या भगवान ने बनाया है या इंसान ने बनाया है? ये भगवान बना कर रखा है, करेक्ट है ना। इसके कारण आप इधर से सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर पाते हो कोई अमेरिका में रहने वाले के पास, करेक्ट ना। अगर ये वेव्स नहीं रहेगा, ट्रांसमिट नहीं होगा कुछ, तो आपका मोबाइल कुछ काम का नहीं। जो बच्चे लोग पेंसिल पेन रखते हैं, वो डब्बा, मोबाइल डब्बा देखा आपने, यू सीन दैट वन बॉक्स लुक्स लाइक मोबाइल। अगर कोई बच्चा लेकर हेलो हेलो बोलेगा, कोई नहीं बात करेगा उसमें। इसी तरह हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो भी ऐसा ही एक खिलौना बन जाएगा। आप बात तब कर सकते हो जब ये वेव्स होते हैं, हाँ? ये वेव्स ट्रांसमिट करते हैं, नहीं तो ट्रांसमिट इसी तरह। तो इसलिए इसी तरह आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो माइकल फैराडे ने क्या आविष्कार की, उसने बोला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे डिफाइन किया उन्होंने। कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से उसे इलेक्ट्रिसिटी आता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी ये एक प्रिंसिपल को लेकर जैसे 2000 3000 उन्होंने चीजों को अनेक लोगों ने आविष्कार किया है, जैसे मोटर है, फैन घूमता है, ग्राइंडर है। पहले माताएं ऐसी करती थी, पत्थर लेकर, आजकल इसमें डाल दो हो जाता है। करेक्ट ना, सबके लिए मोटर है, करेक्ट। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनाया कौन, मैंने एक क्लास में पूछा, एक लड़का बोल रहा है फैराडे ने बनाया। फैराडे नहीं बनाया है। किसने बनाया इलेक्ट्रिसिटी? भगवान ने बना कर रखा है इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो, एक्सरे हो, अल्फा रे, बीटा रे, सब कुछ बना कर रखा है। इसका मतलब है इंसान उन चीजों का सहारा लेकर इन चीजों का आविष्कार कर पा रहा है इंसान, करेक्ट है कि नहीं। अगर वो वेव्स को भगवान ने नलिफाई कर दिया, खत्म कर दिया, ये सब आविष्कार कुछ काम का है क्या? अगर भगवान ने बोला कि आज से इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगा इस दुनिया में, इलेक्ट्रिक, आजकल कितने कार, इलेक्ट्रिक कार भी जाते हैं, आजकल सब वो प्रिंसिपल भगवान बना कर रखा है। कभी कभी आपने सुना होगा एक गांव में अगर कुछ किसान लोगों को पानी निकालना हो, पानी निकालना हो, जैसे पंप, पंप को चलाकर डड 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 पानी आता है, देखा आपने गांव में ऐसे। लेकिन वो पंप को चलाने के लिए वो लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमको इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरना है, तो क्या करते हैं, एक वायर से ऐसे हुक डाल देते हैं, उधर से इलेक्ट्रिसिटी लेकर क्या करते हैं, अपने पंप को चलाते हैं, ताकि बचाव हो जाएगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह जिस तरह एक किसान किसी भी वायर में अपना वायर डालकर इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर लेता है, इस तरह से इस दुनिया के वैज्ञानिक सब लोग आपके ही एनर्जी का सहारा लेकर आविष्कार कर रहे हैं, ऐसे बोला जाम्बवान ने, है? तो इस तरह आपके ही दिए हुए मस्तिष्क, आपके ही दिए हुए सामग्रियां, आपके ही दिए हुए शरीर और अवयव इत्यादि को लेकर जीव काम करता है भगवान। ऐसे जीवों को भेंट देने के बदले आपको भेंट देना चाहिए, ऐसे बोला जाम्बवान ने भगवान को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सेक्शन, क्योंकि जिस मुख से जाम्बवान ने भगवान को चिल्ला रहा था, भगवान के ऊपर क्रोधित होकर, उसी मुख से अभी भगवान की प्रशंसा की, गुणगान की उन्होंने। इसलिए हमने पूछा कि क्या नहीं करना चाहिए मुंह से, आपने बोला कि अफवाह नहीं फैलाना, नहीं तो बुरा भला नहीं बोलना, दूसरों के बारे में कटु वचन नहीं बोलना, आवाज नहीं उठाना, और जो उचित चीज खाने के लिए पदार्थ नहीं है उसको नहीं खाना, वो सब बोला। तो अभी सत्राजित का जो बोला मैंने, उसने क्या किया, सही चीज उसको मालूम था क्या? मालूम नहीं था, फिर भी क्या बोला उसने, बोलते प्रायः कृष्ण ने तो मनिक दीवो वनम गता, लगता है कि मुझे कृष्ण ने इसको लिया होगा, ऐसे बोल दिया उसने, करेक्ट ना। वो गलती हो गया उसके कारण, है? तो गलत चीज जो हमको मालूमात नहीं है उसके बारे में अफवाह फैलाना, वो भी बड़ा पाप है, वो भी ठीक नहीं है, मुझसे नहीं करना चाहिए। और मुंह से हमें गाली भी नहीं देना चाहिए किसी को, करेक्ट ना। गाली देंगे तो थप्पड़ खाएंगे कोई भी, है? गाली नहीं देना चाहिए किसी को। और क्या नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, करेक्ट है ना। झूठ, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और प्रजल्प नहीं करना चाहिए। प्रजल्प का मतलब क्या है,
अनावश्यक बातें, हाँ? नहीं तो अनावश्यक वाद विवाद। एक बार एक वक्त लेटा था, हाँ? हमारे मंदिर में एक, पहले हम बोलते थे सिक रूम बोलते थे, आजकल नाम बदल दिया, हेल्थ रूम बोल दिया अभी, ताकि लोग जल्दी ही जल्द तंदुरुस्त होकर बाहर निकले, इसलिए उसके हेल्थ रूम किया। हेल्थ रूम में एक वक्त सो रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं था, उसका मित्र आया मिलने के लिए, प्रभु कैसा है आपका तबीयत, बुखार है क्या पूछा उसने। वो बोला थोड़ा ठीक है प्रभु जी पहले, लेकिन बुखार निकलता नहीं है बोल रहे थे। इसने पूछा क्या खाते हैं आप दवाई, वो बोला आयुर्वेदिक दवा खाता हूँ बोला। ये फ्रेंड ने पूछा आयुर्वेदिक क्यों खाते हैं, एलोपैथी खाएंगे ना 3 दिन में आपका वायरल फीवर निकल जाएगा, एंटीबायोटिक्स ऐसे बोला। ये बोला हम तो एलोपैथी नहीं खाते हैं, बेकार है, हम सिर्फ खाते हैं क्या आयुर्वेदिक ही खाते हैं, ऐसे बोला। क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई किधर से आते हैं, भगवान धन्वंतरि के हाथ से आते हैं, वो अमृत कलश लेकर आते हैं, और सब दवाइयां देने वाले कौन होते हैं, धन्वंतरि होते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर उनके अस्पताल में आप पीछे देखेंगे एक विष्णु का मूर्ति, कितने लोगों ने देखा, देखा आपने, करेक्ट ना, वो धन्वंतरि है, धन्वंतरि। हमारे दवाई तो धन्वंतरि ने दिया हम खाते हैं, और वो बोले कि तुम लोगों का जो एलोपैथी है सब बेकार है, उससे साइड इफेक्ट बहुत होता है, ऐसे उन्होंने बोला। तो ये उनके साथ डांटने लगे, ये वक्त उठ गए, ये बोले कि ये ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं कि एलोपैथी खराब है, वैसे तो एलोपैथी दवाई भी अंततोगत्वा सब चीजें भगवान से ही आए हैं, ऐसे इन्होंने बोला। तो वो लेटा हुआ वक्त बैठ गया, बैठा हुआ वक्त खड़े हो गया, दोनों खड़े हो गए, हाथ एक ऊपर दिखाते हुए चिल्लाने लगे। मैं जब पहुंच गया उधर, ये बोला प्रभु जी मैं आराम से लेटा था, ये आकर तंग कर रहा है हमको। तो मैंने पूछा तंग क्यों कर रहे हो, बोले तंग करने के लिए नहीं आया, पूछने के लिए आया प्रभु जी। तो दोनों को पता चल गया कि इस तरह वाद विवाद करने से दोनों को अशांति प्राप्त हुआ, करेक्ट है ना। इस तरह मुख से अनावश्यक हम वाद विवाद नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपका एक मत होता है, किसी और का दूसरा मत होता है। कोई बोलता है इंडिया बेस्ट है, अमेरिका बेस्ट है, 2 घंटा चला जाएगा वाद विवाद में, करेक्ट ना। और ये आयुर्वेदिक बेस्ट है, एलोपैथी बेस्ट है, वाद विवाद में समय बीत जाएगा ऐसे, करेक्ट ना। इंडियन क्विजाइन बेस्ट है, नहीं तो पिज्जा पास्ता मंचूरियन वो बेस्ट है, तो उसमें भी लोगों का अलग अलग मत है खाने के, करेक्ट है ना। अपने कपड़े पहनने में धोती कुर्ता एकदम लाइट है, ये अच्छा है, नहीं तो टाइट पैंट शर्ट जीन्स अच्छा है। आप बोलेंगे धोती कुर्ता अच्छा है, वो कोई बोलेगा हमको जीन्स ही अच्छा, करेक्ट है ना। तो इस तरह पर स्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति स निन्दति स ह्याशु भ्रश्यते स्वार्थात् असति अभिनिवेशतः। ऐसे एक श्लोक 11वें स्कंद में, पर स्वभाव कर्माणि, दूसरों के स्वभाव के बारे में, दूसरों के गुणों के बारे में, कर्म के बारे में तुम आलोचना मत करो। अगर तुम करोगे तुम्हारे मन पूरा भौतिक पदार्थों में डूब जाएगा और तुम भगवान को भूल जाओगे, हाँ? ऐसा बताया गया, असति अभिनिवेशतः। कभी भी हमें दूसरों के बारे में दोषारोपण करना, निंदा करना, नहीं तो अफवाह फैलाना, ये सब छोड़ देना चाहिए। श्लोक में बताया है ऐसे। पर स्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निंदति सख्याशु भ्रश्यते स्वार्थात् असति अभिनिवेशतः। अगर असत पदार्थों में आपका मन डूब गया तो भगवान हरि को भूल जाएगा वो, हाँ? इसलिए हमारे मन को ऊपर उठाने के लिए हमारी जिह्वा का नियंत्रण करना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं करना, और वाद विवाद में नहीं जुड़ना, और किसी के बारे में दोष आरोपण नहीं करना, निंदा नहीं करना, करेक्ट है, ये सब छोड़ देना चाहिए मुंह से। अभी क्या मुंह से करना चाहिए हम सुनेंगे आप लोगों से, क्या क्या करना चाहिए बोलिए, कौन बोल सकते हैं? हाँ बोलिए माता। हाँ मधुर वाणी बोलनी चाहिए, वेरी गुड। अगर आपका बेटा पढ़ नहीं रहा, खेलते रहता है रोज आकर, मृदु वाणी से आप बोलेंगे तो पढ़ता नहीं, क्या किया जाए? करेक्ट करेक्ट, प्यार से समझाना पड़ेगा, प्यार से समझाएंगे तो सुनना भी चाहिए वो, हाँ? सुनेगा तो और भी अच्छा बच्चा है। अगर अच्छा बच्चा नहीं तो ट्यूशन टीचर लगा देना चाहिए उसके पीछे। आप मीठे बात करना और ट्यूशन टीचर उनको जो करना करेंगे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, अच्छा है। और मुझे से क्या करना चाहिए और कोई? हाँ ये माता बोल रही कि भगवान की प्रशंसा करना, भगवान की गुणगान करना, हाँ? और भक्तों का भी गुणगान करना, करेक्ट, वेरी गुड।
और कोई यही बोला था हमारे सुखदेव गोस्वामी ने। परीक्षित ने पूछा उनको, एक पहला प्रश्न पूछा उन्होंने, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। उन्होंने पूछा कि हे मुनिवर, इस दुनिया में अगर कोई मृत्यु के निकट पहुंच गया कोई व्यक्ति, जैसे परीक्षित महाराज खुद ही 7 दिन में शरीर छोड़ने वाला है, उनका धर्म क्या है, पूछा उन्होंने। हाँ? और एक प्रश्न पूछा उन्होंने, साधारण जनता का धर्म क्या है, वो दूसरा प्रश्न पूछा। तीसरा पूछा, किसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, गुणगान करने चाहिए, स्मरण करनी चाहिए, किन किन विषयों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए, गुणगान नहीं करना चाहिए, स्मरण नहीं करना चाहिए। ऐसे 4 प्रश्न पूछा उन्होंने। तो सुखदेव गोस्वामी जवाब के रूप में उन्होंने पहले बोल दिया क्या नहीं करना चाहिए वो पहले बोल दिया उन्होंने। चौथा प्रश्न का जवाब दिया पहले, उसके बाद तीसरा प्रश्न का जवाब दिया। उसके बाद क्या जवाब दिया उन्होंने, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हे परीक्षित, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक है गृहमेधी, दूसरा है गृहस्था। क्या दोनों में फर्क है मैं आपको बताऊंगा। गृहमेधी का मतलब है, मेधी का मतलब है जैसे एक ऐसे बीच में एक खंभ होता है और एक बैल क्या करता है, ऐसे गोल गोल घूमता है, ऐसे चक्की बोलते हैं उसको, ऐसे गोल गोल घूमकर उसमें तेल को निकालता है। आपने देखा है? कोल्लू का बैल, कोल्लू का बैल, हाँ, कोल्लू का बैल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेदी बोलते हैं इसको। तो गृह मेदी का मतलब क्या है, वो अपने घर में सुख भोग को ही वो सब कुछ मानता है। जैसे संडे के, अभी कल संडे है ना, कल करेक्ट, हाँ, रविवार के सुबह उठेगा 8 बजे वो, अब लेटे लेटे बेड कॉफी पिएगा वो, साथ साथ न्यूज पेपर भी पढ़ेगा। अब पूछो उसको, अरे 8 बज गया, बोले उठना क्या है, आज तो छुट्टी है। ऐसे लोग बोलते हैं। और उठने के बाद भी, नहा धोने के बाद सब लोग निकलेंगे, मूवी देखने के लिए जाएंगे, पार्टी के लिए जाएंगे, और शाम को इधर उधर बिताएंगे, ऐश्वर्या में बिताएंगे। तो गृह में यदि का मतलब है उसको भोग विलास को छोड़कर जीवन में बाकी कुछ मालूम है ही नहीं उसको, गृह में बोलते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है, जो लोग वैदिक संस्कृति के अनुसार पति पत्नी बच्चे सब भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर प्रातः काल में उठ जाना, भगवान के आल्टर में दिया जलाना, भगवान को फूल चढ़ाना, भगवान को फल फूल इत्यादि अर्पित करना, भगवान को सर झुकना, आचार्य गुरु को सर झुकना, उसके बाद गीता भागवत खोल कर 2 पेज पढ़ लेना, और जो भोग बनाते हो घर में उसमें भगवान को अर्पित करके प्रसाद ही खाना, और इस तरह कीर्तन करना, और कुछ आध्यात्मिक इस तरह का सत्संग कार्यक्रम में जाकर जुड़ना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, नाम जपना, इस तरह जो जीवन जीते हैं उनको गृहस्थ आश्रम बताया गया। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम है, इसे गृहस्थ आश्रम है ऐसे। और गृहस्थ जो होते हैं वो साधु संतों के संग करते हैं, भगवान की सेवा इत्यादि के लिए दान अर्पित करते हैं, और वो नियमित रूप से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग ढूंढ लेते हैं। ये गृहस्थ आश्रम है ऐसे। इधर बताते हैं, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। हे परीक्षित, इस दुनिया में हजारों विषयों के बारे में लोग बातचीत करते हैं। जैसे किस सिनेमा एक्ट्रेस ने किस सिनेमा एक्टर को विवाह करने वाली है। पहले बोलेंगे कि ये सोच रही थी इसके साथ करने की, बाद में मन बदल गया उनका, अभी इसके साथ करने वाली है। तो अगर ये नहीं सुनने से कोई मरने वाला नहीं है। आप देखेंगे कितने इस तरह के न्यूज़ आते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में है, सिनेमा के बारे में है, पॉलिटिक्स के बारे में है, तो ऐसे हजारों विषय है। आप देखेंगे प्रातः काल में जब पंछियां जब उठते हैं सुबह, चू 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 आवाज करते हैं, देखा आपने? तो आवाज करने का मतलब क्या है, एक पंछी दूसरे पंछी को पूछता है कि अभी भोजन किधर मिलेगा। जैसे आपने कोयल को कुहू करते हुए सुना होगा, कुहू, ऐसे एक कोयल बोलेगा तो दूसरे पेड़ से दूसरा कोयल वो भी बोलेगा। ये पूछ रहा है भोजन किधर, वो बोलेगा इधर है। तो भोजन के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से कोई विद्यार्थी टीचर के साथ बात कर रहा है, कोई कोर्ट में लॉयर किसी के साथ बात कर रहा है, बिजनेसमैन भाव बता रहा है, कोई खरीद रहा है। इस दुनिया में सब लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे,
लेकिन बोलने वाले जो होते हैं इस तरह पूछने वाले और जवाब देने वाले, इनमें से श्रेष्ठतम लोग कौन है? उन्होंने बताया कि जो पूछताछ होता है भगवान संबंधित, और जो जवाब दिया जाता है भगवान संबंधित, जैसे अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने जवाब दिया। परीक्षित ने पूछा सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने जवाब दिया। इस तरह का जो ये होता है, चर्चा होता है, जीवन की अंतिम लक्ष्य क्या है, आत्मा का गंतव्य स्थान क्या है, कैसे हम इस भौतिक दुनिया से भगवत धाम लौटना, इसके बारे में चर्चा होता है। वो उत्तम चर्चा है वो, नहीं तो एक रोगी व्यक्ति दूसरे रोगी को मिलता है, रोगी रोग के बारे में बात करते हैं, भोगी भोग के बारे में बात करते हैं, शराबी शराब ब्रांड के बारे में बात करते हैं। इस तरह अपने अपने लोग के मति के अनुसार वो लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि इस तरह की चर्चा में तुम फंसो मत, क्योंकि इस दुनिया में लोग अनेक भौतिक विषयों के बारे में चर्चा करते हैं, वो कुछ काम का नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जितना भी तुम चर्चा करो, चीजें ज्यादा बदलते नहीं इस दुनिया में, हैं। लेकिन इसके विरुद्ध उन्होंने बोला कि, सब लोग पीछे बोलिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्चता भयम। उन्होंने बोला, हे परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान को सर्वात्मा करके क्यों बोलते हैं? हर एक शरीर में आत्मा है, लेकिन भगवान भी आत्मा के साथ साथ परमात्मा के रूप में खड़े हैं, इसलिए सब शरीरों में है, इसलिए उनका नाम है सर्वात्मा। सब शरीर में अंतर्यामी है वो। और दूसरा बताते हैं, भगवान षडैश्वर्य पूर्ण है, उनके पास समुद्र के बराबर खूबसूरती है, धन, इस दुनिया में कोई लाखपति करोड़पति अरबपति है, लेकिन भगवान कौन है? लक्ष्मीपति है। इस तरह खूबसूरती में भी भगवान की सीमा ही नहीं है। और भगवान का खूबसूरती और शक्ति कभी घटता नहीं, इस दुनिया में सब जीवों का घट जाता है। इसलिए भगवान बताते हैं कि षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण है। और ईश्वरो बोल रहे हैं, सब सारे जीवों को, दुनियाओं को, अनंत कोटि ब्रह्मांड को नियंत्रण करने वाले होते हैं, ईश्वर होते हैं। ईश्वरो हरि। देखिए, हम भी अजय है, भगवान भी अजय। अजय का मतलब है अनबॉर्न। एक श्लोक है, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि। भगवान बोलते हैं मैं अजन्मा हूँ, जीव भी बोलेगा मैं भी अजन्मा हूँ। भगवान बोलते हैं मेरे पास अव्यय शरीर है, आध्यात्मिक शरीर। जीव क्या बोल सकता है? मेरा भी शाश्वत काल के लिए आध्यात्मिक शरीर है मेरा भी। लेकिन भगवान बताते हैं भूतानाम ईश्वरोपि सन्, सब जीवों का मैं स्वामी हूँ। क्या जीव बोल सकता है? जीव नहीं बोल सकता, क्योंकि सब जीव छोटे हैं, भगवान पिता जैसे हैं, सबसे बड़े हैं। जैसे एक उपनिषद में ये श्लोक आता है, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान। भगवान नित्य हैं, हम भी नित्य हैं। भगवान के पास भगवान चेतन है, हम भी चेतन हैं, लेकिन भगवान एक हैं, हम अनेक हैं। और भगवान स्वामी हैं और हम दास हैं, ना ऐसे बताया उसमें। तो इस तरह उन्होंने बताया कि ऐसे भगवान जो है सर्वात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, उनका नाम है हरि। हरि का मतलब है सर्व अमंगल हरे इति हरि। सब तरह के अमंगल अशुभ चीजों को हमसे निकाल देते हैं भगवान, जैसे अनावश्यक काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर इत्यादि को निकाल कर हमारे हृदय को पवित्रता से भर देते हैं। ऐसे भगवान हरि का कथाएं सुनना चाहिए, जैसे आप लोग आज इकट्ठित हुए हो, जैसे गीता भागवत से सुनने के लिए। तो इस तरह ऐसे भगवान हरि के बारे में श्रोतव्य है, सुनो पहले अच्छी तरह, और कीर्तितव्य, उसके बारे में दूसरों को भी सुनाओ। जैसे आप लोग सुन रहे हो और मैं सुना रहा हूँ, ये दोनों मंगलमय हैं। सुनने वालों के लिए भी, वक्ता जो होते हैं बोलने वाले के लिए भी, प्रश्नोत्तर करने वाले लोगों के लिए भी है, तीनों के लिए वासुदेव कथा पवित्र है, मंगलमय है, ऐसे बताते हैं। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, उसके बारे में बोलने के बाद चिंतन करना चाहिए भगवान के दिव्य गुणातिशयों के बारे में है। ये करेगा, ये दोनों के लिए उचित है। जो मृत्यु के निकट पहुंच गया और दूसरा व्यक्ति अभी जी रहा है दुनिया में, उसके लिए भी यही धर्म है। तब परीक्षित ने पूछा, आप बोल रहे हैं सुनो करके, लेकिन सुनने के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी 7 ही दिन बाकी है मेरे पास। क्योंकि अगर अवधि ज्यादा होता था तो और भी सुन सकता था भगवान के बारे में। तब उन्होंने उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक कहानी बताया उनको। हे राजन, तुम चिंता मत करो,
एक था राजा, उसका नाम था कटवांग नाम का। ये कटवांग राजा जो था बहुत धार्मिक राजा था, भगवान के महान भक्त था वो। एक बार वो स्वर्ग लोगों में गया था, देवताओं ने उनको बुलाया था असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। असुरों को भगा दिया उसने। सब युद्ध होने के बाद देवताओं ने उनको बुलाया, पूछा कि राजन, हम सब लोग आपसे बहुत कृतज्ञ हैं, और आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आप बताओ क्या चाहिए? अगर आपको सोना का रथ चाहे तो दे देंगे, हाथी घोड़ा चाहे तो दे देंगे, आपको जो चाहिए मांगो, स्वर्ग में हमारे पास भरपूर है। ऋतिक कैवल्यम, आपको मोक्ष को छोड़कर बाकी कुछ भी मांगना है इस दुनिया के सामान मांग लो, हम दे देंगे। ऐसे बोला देवताओं ने। तब कटवांग राजा बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए मुझे। आप मेरे पंचांग को देकर, मेरे नक्षत्र को देकर बताओ मेरा आयुष कितना बचा हुआ है। तो वो लोगों ने देखा, देखकर बोला कि काश, अभी पता चल गया कि आपके लिए एक ही मुहूर्त बचा है आपके जान छोड़ने के लिए। एक मुहूर्त मतलब लगभग 45 मिनट। राजा ने जब सुना, तत्क्षण निकल गया उधर से, अपने राजमहल में सीधा पूजा रूम में चला गया, जपमाला ले लिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान हरि का नाम लेते लेते शरीर त्याग कर भगवान हरि के ही वैकुंठ धाम पहुंच गया वो राजा। बुद्धिमान है। तो लोग बोलेंगे पीछे, कट्वांगो नाम राज ऋषि ज्ञात्वे युक्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। गतवान अभयम हरिम ऐसे बताते हैं। वो चले गए, वापस लौट गए उस अभय पदवी में। अभय पदवी मतलब जिधर भय कभी नहीं होता। इस दुनिया में तो हमेशा भय होता है। किसी के पास नौकरी नहीं है, भय होता है नौकरी मिलेगा कि नहीं है। किसी के पास नौकरी है, उसको भी भय है कि नौकरी छूट जाएगा। किसी का नौकरी छूटता नहीं, 5 साल हो गया, अभी प्रमोशन का टाइम आ गया, मिलेगा कि नहीं प्रमोशन। ऐसा भी डर है इस दुनिया में, हमेशा डर है। किसी को बच्चा नहीं हुआ करके डर है, बच्चा आने के बाद डर है कि संभाले कैसे इसको। ऐसे तो इस दुनिया में सब लोग भयभीत होकर रहते हैं। लेकिन भगवत धाम का नाम है वैकुंठ, और इस दुनिया का नाम है कुंठ। कुंठ का मतलब है भय और चिंता। उस दुनिया में कोई चिंता नहीं, उस स्थान में पहुंच गया वो। क्योंकि समय की सदुपयोग की। कटवांग राजा ने बुद्धिमत्ता से क्या किया, वो देवताओं से कुछ भौतिक पदार्थ मांगने के बदले उन्होंने मांग लिया कि भगवान हरि का चिंतन कैसे हो। हरि का चिंतन करके भगवत धाम लौट गया बुद्धिमत्ता से ऐसे। कटवांग राजा। तो उनका उदाहरण दिया किसने? सुखदेव गोस्वामी ने। किसको दिया? हाँ, परीक्षित तवाप्य तरही कौरव्य सप्ताहम जीविताद अवधि। देखो उसके पास एक ही मुहूर्त था, तुम्हारे पास कितना टाइम है? 7 दिन है। इसलिए चिंता मत करो, चिंता मास्तु। चिंता मत करना राजन, क्योंकि तुम्हारे पास 7 दिन बाकी है। 7 दिन में बहुत कुछ कथाएं सुन पाओगे आप। पूरे भागवत कथा उनको बताया। तो भागवत कथा बोल बोल कर सुखदेव गोस्वामी का मुख पवित्र हो गया। और भागवत कथा श्रवण करते 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 परीक्षित का चित्त भी शुद्ध हो गया, और मृत्यु आने के पहले वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो गया वो परीक्षित। शरीर छूटते ही सीधा पहुंच गया भगवत धाम में ऐसे। इसलिए उन्होंने बताया था कि परीक्षित को भगवान के संबंध में बोलना चाहिए, भगवान के संबंध में सुनना चाहिए, भगवान के दिए हुए शिक्षा विधि इत्यादि को विधिवत जीवन में पालन करना चाहिए। और इसलिए मुझ से कोई माता ने बोला अभी हमें प्रेम से बोलना चाहिए किसी को भी, और कटवचन नहीं बोलना चाहिए किसी को भी हो। लेकिन इधर शास्त्र में क्या बताया गया, एक श्लोक में भगवान बताते हैं कि हमारी बात कैसे होनी चाहिए। सब लोग पीछे बोलेंगे, अनुद्वेगकरम वाक्यम, बोलिए, सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। देखिए इधर बोलते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम, दूसरों को दुखित करने वाले बात मत करो, ऐसे बताते हैं। दूसरों को उत्तेजित करने के बात मत करो, ऐसे मत करो। इसका मतलब ऐसा कुछ मुंह से ना निकले तुम्हारे मुंह से, उसको सुनकर दूसरे लोग उत्तेजित हो जाएंगे तुमसे। ऐसा माँ ने बताया, ऐसे ही बोल रहे हैं। अनुद्वेगकरम, उद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम, सत्य बात बोलो, झूठ मत बोलो। प्रिय मतलब प्रेम से बोलो। हितम, कुछ हितकारक बोलो। क्योंकि अगर हितकारक नहीं हो तो ऐसी बातें मत करो। हितकारक होनी चाहिए। स्वाध्याय अभ्यासन, शास्त्र पढ़कर
कुछ बुद्धिमत्ता से कुछ बोलो, कुछ बेवकूफी के साथ कुछ मत बोलो। शास्त्र पढ़कर समझ कर उचित चीज बोलो लोगों को, जिससे लोगों को भलाई हो। 5 चीज भगवान बताते हैं। अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम, प्रिय, हितम, स्वाध्याय, अभ्यसनम। इस तरह हमारे मुंह से शब्द निकलना चाहिए, ऐसे बताते हैं। क्योंकि अच्छी चीज अगर हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जीवन में लागू करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, हम सबको भलाई कर सकते हैं। करेक्ट है ना? हाँ। तो हम ऐसे बातें हमें करनी चाहिए। कुछ कुछ लोग अनावश्यक बातें करते हैं, जिसको प्रजल्प बोलते हैं। कुछ लोग कटुवचन बोलते हैं, कुछ लोग गाली देते हैं। इसलिए हमने बताया कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इधर भगवान खुद ही बताते हैं 5 चीज। प्रिय प्रेमी के साथ बोलो, हितकारक बोलो, उत्तेजित करने वाली चीज मत बोलो, और स्वाध्याय करके बोलो। इस तरह है। तो सबसे उच्च कोटि का शब्द हमारे मुंह से क्या निकल सकता है? भगवान का हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये नाम का उच्चारण करने से क्या होता है? जब आप नाम का उच्चारण करते करते इसको ध्यान पूर्वक सुनते हो, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल, ऐसे बताता है कि नाम के श्रुति से आपके चित्त निर्मल होता है। ये भागवत के अंदर बताया गया है ऐसे। नाम क्या करता है? अंदर जाकर आपके चित्त के जो गंदगी है, मल है, उसको मिटा देता है, उसको क्लियर करता है, ऐसे बताया। क्योंकि भगवान खुद ही करते हैं हमारे हृदय में जब हम नाम का लेते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है मैं थोड़ा समझाऊंगा उसको। जैसे अगर आप भगवान का नाम को पुकारते हो, भगवान जानते हैं कि ये जो पुकारने वाले जीव मेरा ही अंश है। वो पहले था शुद्ध वो, लेकिन अब इसके ऊपर मन का आवरण आ गया और मन में मलिनता है। काम क्रोध मतलब मोह मत्सरिया इत्यादि चीजें हैं, उसके मन में गंदगी है। तो इसलिए मेरे ऊपर निर्भर होकर मुझे पुकार रहा है, मेरे मन को निर्मल करो, इसलिए मेरा कर्तव्य पड़ता है, ऐसे भगवान सोचते हैं। जैसे एक बच्चा, कभी कभी माँ रसोई में काम कर रही है, एक बच्चा मल मूत्र का विसर्जन करके उसमें ही लोट पड़ता है, और वो गंदा स्मेल आता है, तब बच्चा रो पड़ता है। तब माँ को पुकारता है, कुआ 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 कुआ, ऐसा आवाज करता है। तो माँ आ जाती है रसोई से, क्या हो गया बेटा? और देखते हैं कि अरे शेम शेम पपी शेम, देखो कितना गंदा है तुम, माला मूत्र में लोट पोट कर क्या कर रहे हो इधर? मेरे पास मत आओ, चलो सीधा बाथरूम में जाओ, नहा धो कर आओ। तो बच्चा बोलता है मैं कैसे जाऊंगा बाथरूम में, कैसे जाना है? उधर पानी कितना गर्म है, अगर ज्यादा धुआं धुआं निकलने वाली पानी हो तो सीधा सीधा नहीं डाल सकते आप, है ना? बच्चे अपने आप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो दोनों हाथ ऊपर करके माँ को पुकारता है कि आप ही मुझे हेल्प करो। तब माँ बोलती है ठीक है, तुम अगर मेरा शरण लेते हो तो मैं सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए, हैं? तो माँ क्या करती है, बच्चे को उधर बाथरूम में लेके जाकर नहा धोकर अच्छे नया कपड़े पहना कर, पाउडर लगाकर, रबर बैंड डालकर, सब कुछ करके हैं, बच्चे को लेकर आते हैं। पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। इधर भगवान बताते हैं अर्जुन, ये शाम तो अंतगतम पापम, जो लोग पापों का फुल स्टॉप लगा दिया, अभी पाप करने का प्रक्रिया छोड़ ही दिया उन्होंने, जो लोगों ने, और जना नाम पुण्य कर्मणाम, और श्रवण कीर्तन इत्यादि के पुण्य कर्म में लगते हों, ऐसे लोग, और ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते, ऐसे लोग मेरा दृढ़ भजन कर सकते हैं, ऐसे भगवान बोलते हैं। इस तरह माँ बच्चे को बोलती है, बच्चा इतना अशुद्धि के साथ मेरे पास नहीं आ सकते हो तुम, चलो बाथरूम में नहा धो कर आओ, तब मैं तुमको स्वीकारूंगी, ऐसी माँ बोलती है। इसी तरह भगवान भी बोलते हैं, पाप को खत्म करके आओ मेरे पास, और श्रवण कीर्तन में जुड़कर तब मेरे पास आओ, तब तक मैं तुमको लूंगा नहीं, ऐसे भगवान बताते हैं इस श्लोक में। लेकिन आगे के श्लोक में 18.66 में भगवान क्या बताते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण चरम श्लोक है, सब लोग बोलेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन अर्जुन, अगर ये एक जीव अनेक बाकी छोटे मोटे धर्मों को छोड़कर मेरे श्री चरणों में आश्रित होता है, मेरा याचना करता है मेरी मदद के लिए, ऐसे जीव को लेकर मैं खुद ही उसके पापों को मिटा दूंगा। अहम त्वाम
सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इसके माँ इसके किसके समान है बता रहे हैं आचार्य, जिस तरह माँ बच्चे को लेकर उसके मलमूत्र इत्यादि को वो ही शुद्ध करती है, खुद ही करती है, बच्चे अपने आप नहीं कर पा रहा है, जैसे खुद ही करके उसको ठीक करती है। इस तरह उन्होंने बताया कि हम लोग भगवान के पास आश्रय लेने का तरीका क्या है, यह हरिनाम का जप है, यह हरिनाम के जप के द्वारा अगर हम हरिनाम नहीं जपेंगे, हम बोल रहे हैं माता को मैं खुद ही शुद्ध कर लूंगा अपने आप को, आपके ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन अगर हम माता को मांगना हो कि आप ही हमको हेल्प करो, तो उसके लिए हम नाम जप है। तो प्रभुपाद ने बोला कि नाम जप का मतलब क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब है ओ लॉर्ड प्यूरिफाई मी, एक्सेप्ट मी, ओ लॉर्ड प्यूरिफाई मी, अपलिफ्ट मी, एक्सेप्ट मी। प्रभुपाद ने बोला कि हे भगवान आप हमें हमें शुद्ध कीजिए, आप ऊपर उठाइए और अपना बना लीजिए, आपकी सेवा में लगा लीजिए, ये मीनिंग है उसका। तो इसलिए अगर हम इस मूड के साथ अगर हम नाम जपेंगे, तो नाम जब घुसता जाएगा हमारे कान में, धीरे धीरे हमारे मन की मलिनता मिट जाएगा, पाप कृतियां मिट जाएंगे, पाप करने की प्रवृत्ति ही छूट जाएगा। उसके बाद पाप का कृतियों में लगेंगे ही नहीं हम, और निर्मल हृदय में आपको सुख शांति आनंद का अनुभव होता है आपको। जैसे अगर इस कमरे में अगर आप भक्त लोगों ने प्रसाद लिया, दाल पड़ा है, चावल पड़ा है, सब गंदा पड़ा है, अगर कोई भागते हुए आएगा बाहर से, उसके पाँव में अगर चावल और दाल उसके चिपक जाएगा, अच्छा लगेगा उसको? हाँ, क्या बोला, अरे क्या किया आप लोगों ने, सफाई नहीं किया कमरे का, बोलेगा, है ना। लेकिन इसी कमरे को अगर पानी डालकर सफाई करके फैन ऑन करके उसको सुखा दिया, फिनाल डेटॉल डालकर, कितना अच्छा होगा, है ना। हाँ? इस तरह से साफ हुआ कमरा अच्छा लगता है सबको, हाँ? गंदा कमरा अच्छा नहीं लगता। इसी तरह साफ मन जो है सबके लिए अच्छा लगता है, साफ मन से अच्छे अच्छे शब्द निकलेंगे, हाँ? और समथिंग कंस्ट्रक्टिव, समथिंग वंडरफुल कैन कम आउट। नहीं तो जो गंदा मन जो है खुद को भी तकलीफ, दूसरे सर्वपातकैः ततः सद्यो विमुच्येत सिंहत्रष्टैर्मृगैरिव। जिस तरह सिंह की दहाड़ सुनकर जंगल के छोटे प्राणियां डर के मारे भाग जाते हैं, इस तरह भगवान के नामों का जप, भगवान के नामों का कीर्तन सुनकर सब तरह के अवगुण दूर भाग जाते हैं, ऐसे बताया। हाँ, तो इस तरह अगर आपके अंदर सद्गुण चाहिए, अवगुण नहीं चाहिए, अगर आपके सद विचार चाहिए, बुरे विचार नहीं चाहिए, आपके शुद्ध शब्द निकलना चाहिए आपके मुंह से, अशुद्ध शब्द नहीं निकलना चाहिए, आपके मन में शांति सुख चाहिए आपको, अशांति और इत्यादि नहीं चाहिए आपको, तो उसके लिए उत्तम मार्ग क्या है, नाम का जप। इसलिए नाम जप जो है, शुरुआत में आप लोग 1 माला 2 माला कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 6 महीना आ रहे हैं, 1 साल आ रहे हैं, तो आप आसानी से 8 माला आप कर सकते हो। 8 माला के लिए आपको 1 घंटा लगेगा। कोई पूछेंगे प्रभु जी अगर हमारे 1 घंटा निकल गया है सुबह, लोग बोलते हैं कि समय की बर्बादी है, इतना बर्बाद क्यों करना है समय की, बहुत कुछ चीजें पड़ा है जीवन में करने के लिए। लेकिन जो लोग नाम नहीं लेते हैं, वो लोग अनावश्यक चीजों में समय बिताते हैं, आपने देखा होगा। कितने कितने लोग झगड़ा करने में, एक 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 स्त्री थी, उसके पति को बोला उन्होंने, चैंड 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 बोला, पति ने बोला कांट 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 बोला उसने। और एक बार एक व्यक्ति आर्ग्यू कर रहा था कि मैं जपा क्यों नहीं कर सकता, 1 घंटा आर्ग्यूमेंट कर रहा था, 1 घंटे में उसका 8 माला हुआ होगा उसका। है ना। इतना लोग मुंह से बड़बड़ करते हैं, बोलते हैं, लेकिन नाम जप नहीं करते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे, अगर हम नाम जप ना करने से मलिन मन जब होता है, वो हमें पाप कृतियों में लगाता हो। तो अनेक लोग शाम के समय देखेंगे पैसा कभी खर्चा, अनेक गलत आदतें आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी आ जाते हैं, पैसा का भी बहुत खर्चा हो जाता है अनावश्यक पदार्थों में है ऐसे। लेकिन नाम जपने वालों का जीवन सीधा साधा बन जाता है, सरल बन जाते हैं। Many of the devotees can cut costs, they can do savings and they can lead the life progressively। क्योंकि उनको मन और इंद्रियों का काबू आ जाता है, काबू में आ जाते हैं मन और इंद्रिय, और उनको सही दिशा में लेके जा सकते हैं उसको, गलत दिशा में जाने नहीं देंगे उसको। जैसे ये होता है ना कंपास, आपने देखा है कंपास किस दिशा में हमेशा जाता है, नॉर्थ। इस तरह भक्तों के लिए भी एक ये मिल जाता है, शास्त्र को पढ़कर नाम जप करके उनको करेक्ट डायरेक्शन मिल जाता है, ये गलत, ये सही डायरेक्शन है, ये गलत है, समझ जाते हैं वो लोग, तो सही दिशा में जा पाते हैं भक्त लोग।
इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये नाम जप के लिए जो टाइम निकालते हो, इसको समय की बर्बादी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मैंने एक कहानी सुना, एक एक जमींदार ने एक व्यक्ति को, एक लकड़हारा को काम में लगाया। तो पहला दिन वो एक पेड़ काट कर लाया, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3 और चौथा दिन मैं पूछूंगा आपको कितना किया, आप बोलेंगे 4, है ना? 4 नहीं कर पाए, एक ही काट कर लाया उसने। तो जमींदार ने पूछा, क्या आलसी पड़ गया क्या? पूछा उन्होंने। बोला, आलस नहीं किया जी, सुबह से काट रहा हूँ शाम तक, लेकिन काम हो ही नहीं रहा, पता नहीं है। तब उन्होंने देखा कि उनका जो हैक्सा जो था, क्या हो गया वो, उसका तार तार बोलते हैं उसको, हाँ, खराब हो गया वो, ब्लंट हो गया वो। क्योंकि उसके लिए क्या नहीं किया उसने, शार्प नहीं किया उसने। तो गरम भी हो गया, काम भी नहीं कर रहा वो। इस तरह आजकल लोग आईटी में 16 घंटा काम करते हैं, 14 घंटा काम करते हैं, उनका दिमाग गर्म भी हो जाता है, काम भी कर नहीं पाते हैं। दोनों प्रॉब्लम है, करेक्ट है ना? लेकिन अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो ये टाइम निकाल कर करेंगे तो आपका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, आपका इंटेलिजेंस भी बढ़ जाएगा। ये नाम जब से आपका विवेक बुद्धि, आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सब बढ़ता है उससे, हाँ? क्योंकि भगवान का सहयोग मिलता है आपको, सपोर्ट मिलता है आपको। सो इफ यू डोंट कूल डाउन योर हेड, देन विद अ हॉट हेड यू विल आल्सो स्पीक विद इरिटेबल वर्ड्स। आपके मुंह से भी अपशब्द निकलते हैं, आने के बाद झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के बाद बहुत समय की बर्बादी होता है, करेक्ट है ना? हाँ, सारी पूरी बोलने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, हाँ? आप बोलेंगे सारी, वो बोलेंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम होता है, करेक्ट है ना? इसलिए ABCD 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन वीकली एंड भगवत गीता डेली 1 पेज, चैंटिंग हरे कृष्णा सम फिक्स्ड राउंड्स, और डिवोशनल डाइट प्रसाद। तो इस तरह आज के सत्र में मैंने खास करके इस विषय के ऊपर हमने जोर दिया कि मुंह से क्या बोलना नहीं चाहिए और मुझसे क्या बोलना चाहिए। कुछ प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ, कितने लोगों को समझ में आ गया पूरा बात में जो बोला? सबको समझ में आ गया? ठीक है। अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो आप रिवाइज करेंगे। ये लोग तो हमेशा पक्का रिवाइज करते हैं ना, या मैंने देखा काट 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 करके पूरा लेक्चर रिवाइज कर देते हैं। ये कौन बोलेंगे पहले? उनका माइक नहीं क्या उनके पास? माइक नहीं है? और एक नहीं तो इसको दूं? हाँ, हाँ, धीरज प्रभु, one mic is available for. बहुत बुद्धिमान ग्रुप है ये, हमेशा मैंने 2-3 बार अनुभव किया है कि ये लोग अच्छा आंसर दे देते हैं, काट काट अच्छा याद रखते हैं, हाँ? Yeah, in the meantime, whoever has any questions, last one. Otherwise, probably last question. So, if you have anything. एक बोलिए माला। करेक्ट 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 करेक्ट। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसे श्लोक का करेक्ट करेक्ट। जैसे अगर एक माँ सोचती है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, खेलता रहता है, हाँ? उसको बच्चे को क्या करना चाहिए? हाँ? बच्चे को हम बोलते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम पढ़ोगे तुमको ये भेंट में मिलेगा, तुमको ये खिलौना मिलेगा, नहीं तो ट्राईसाइकिल मिलेगा, अगले साल मैं ट्राईसाइकिल दे दूंगी। अगर हर दिन तुम 2 घंटा पढ़ो, अगले साल तुमको ट्राईसाइकिल मिलेगा। ऐसा अगर बोलेंगे कुछ रखेंगे तो बच्चा पढ़ता है, ही हैज सम एक्सपेक्टेशन, इससे वो करेगा। वो कुछ समय के बाद उसका अच्छा आदत आ जाएगा उसके जीवन में। उसके बाद पर जैसे कोई माँ बोलती है, बच्चा अगर स्कूल जाओगे तो मैं कैडबरी दूंगी, हाँ कैडबरी मिलेगा, तो स्कूल जाता है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद कैडबरी बंद हो जाएगा, लेकिन स्कूल जाना जारी रहेगा। ऐसे इस तरह कभी कभी प्रलोभन देते। जैसे मेरी माँ क्या करती थी बचपन में, एक शंख में दवाई लेती थी, वो शंख देखता तो भाग जाता था मैं, हाँ? मैं तो छोटा ही बच्चा था और इतना भागता था, वो पीछे भागती थी।
तो उसके बाद माँ ने सोच लिया कि इसको दवाई पिलाना हो तो एक ही उपाय है, तो लॉलीपॉप दिखा दी थी वो। हाँ? तो मुझे गोद में ले लेती थी, मुख में लॉलीपॉप डालती थी, मैं खाते खाते आंख बंद कर लेता था, उसके बाद ऐसे शंख तो दवाई डालती थी। तो दवाई मुख में आता ही चिल्लाता था, बोलती थूकना नहीं, उसको थूकेगा तो लॉलीपॉप नहीं मिलेगा। तो मैं पी भी लेता, उसके बाद लॉलीपॉप देती थी, ऐसे दोनों हाथ में दो, एक हाथ में दवाई दूसरे हाथ में लॉलीपॉप, ऐसे खिला दिया उन्होंने। करेक्ट है ना? वो इस तरह के काम भी हो गया, उनका भी काम हो गया, मेरा भी दवाई मिल गया मुझे भी ऐसे। तो बच्चों को कुछ देना होता है, लेकिन एक चीज है, बच्चों को रुचि लाने के लिए, पढ़ाई में रुचि लाने के लिए कभी कभी माता पिता को साथ में भी बैठना पड़ता है। उनके साथ बैठकर आप भी पढ़ो, तब बच्चे रुचि से पढ़ते हैं। तो हम अपने काम में बिजी रहेंगे, वो अपने खेल कूद में बिजी रहते हैं, तो उनके लिए टाइम निकालना पड़ता है उनके लिए, खास करके जब दे आर इन अ ग्रोइंग एज। हाँ, या और किसी को कभी बार बार बोलने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं करते, उनको कभी कटु वचन बोलना होता है कभी कभी। जैसे माता पिता बच्चों को डांटना होता है, टीचर भी स्टूडेंट को डांटना होता है। कभी कोई क्लास में बहुत शरारती करता है कोई लड़का, तो टीचर को थोड़ा स्ट्रांगली बोलना पड़ता है। लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं, तुम ऊपर ही ऊपर स्ट्रांग बोलो, लेकिन क्रोध के वश में मत आ जाओ। यू कैन डू द ड्रामा ऑफ बीइंग एंग्री बट नॉट एक्चुअली बिकम एंग्री। तो एक मैंने एक प्रवचन में इसके ऊपर ही बोला था कि डज द एंगर यूज यू और यू यूज एंगर। हमें एंगर को, हम क्रोध को हम यूज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करके अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको शॉक होकर हम मर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इस तरह हम क्रोध का वश में नहीं आ जाना चाहिए, लेकिन क्रोध को इस्तेमाल कर सकते हैं। यू हैव टू यूज द एंगर इन अ कैलिब्रेटेड वे, इन अ वेरी मेजर्ड वे, नॉट बिकम ओवरकम बाय एंगर। ऑलराइट? या कभी कभी थोड़ा बोलने से तब करेंगे। शास्त्र के अनुसार माता पिता कैसे होने चाहिए? शास्त्र बताते हैं कि जैसे धृतराष्ट्र अपने अपने बेटे को बहुत लंबा चौड़ा कुछ भी करने के लिए, दैट कॉल्ड परमिसिव पेरेंट्स। कुछ भी करने के लिए वो मना ही नहीं करेंगे वो। और इसके विरुद्ध हिरण्यकशिपु बहुत कठोर था, बच्चे का बहुत सताया उसने। हाँ, लेकिन अच्छा पिता कौन है? ऋषभदेव अच्छा पिता है, बच्चों को बिठाकर उपदेश भी दिया, हाँ, एम्पावरमेंट भी किया उनको। अच्छा माँ कौन है? सुनीति। हाँ, सुनीति बहुत अच्छा माँ थी, बच्चे को सही मार्गदर्शन दिया उन्होंने। तो अच्छा माता कैसे बिहेव करते हैं, अच्छे माँ ने इतने अच्छे अच्छे सिखाया। ध्रुव को बोला उन्होंने, हे बच्चे, अगर तुम्हारी सौतेली माँ ने कटु वचन भी बोला, लेकिन उनके लिए बुरा मत सोचो मन में। इस दुनिया में हमें किसी भी जीव के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। उनको दंड प्राप्त करना हो, दंड तो भगवान देंगे, तुमको चिंता नहीं। हाँ, तुम अपनी प्रगति के बारे में सोचो बेटा, किसी का टांग मत खींचो। हाँ, ऐसे अच्छी बात सिखाया उन्होंने अपने बच्चे को। वेरी इंटेलिजेंट मदर। हाँ, तो अच्छे माँ, अच्छे पिता, अच्छे, इस तरह हर एक का कर्तव्य होता है कि हम किस तरह से बर्ताव करें जिससे दूसरों को प्रगति हो, हमको भी प्रगति हो। अनावश्यक हम किसी को दुखित ना करें। करेक्ट? नाउ वी कैन रिवाइज। या तो कौन रिवाइज करेंगे? पहले पॉइंट क्या याद है आप क्लास में जब मैंने चालू किया? मैंने कैसे चालू किया? मैंने पहले, हाँ, उधर से वो माता को दीजिए उनको। हाँ, इस बुक से क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं? हाँ, वह प्रश्न पूछा मैंने। पहले पूछा क्या नहीं बोलना चाहिए, बाद में पूछा क्या बोलना चाहिए। करेक्ट, थैंक यू। उसके बाद उसमें एक बात मैं भूल गया बोलने के लिए। अभी एक महातत्व है, महातत्व के पहले प्रधान करके एक पदार्थ है। सब भौतिक दुनिया के सब पदार्थ प्रधान के स्थिति में, उसमें 3 गुण भी नहीं है उसमें। हाँ, उस समय वो निर्मल अवस्था में है उस समय, लेकिन भौतिक पदार्थ है सब। उसके बाद उधर से महातत्व आता है, प्रकृति आता है। आप देखेंगे हाँ, धीरे धीरे उधर अहंकार का मिश्रण हो जाता है। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार का मिश्रण होता है, तो रजोगुण तमोगुण आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे दुनिया की समस्याएं बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तो इसका मतलब है इस दुनिया में जीवों के अंदर जब गुण आ जाता है, उनके मुख से रजोगुणी तमोगुणी शब्द निकलते हैं। इसके कारण भौतिक दुनिया के जो ध्वनि जो है वो दूषित ध्वनि हो जाता है। हाँ, जैसे आप लोगों ने क्लास में भी सुना, अनेक चीज़ क्या क्या मुंह से बोलना नहीं चाहिए वो सब बोलते हैं जीव।
हाँ, वो जीव का बंधन का कारण बनता है वो। हाँ? लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जैसे भगवान के दिव्य वाणी को, दिव्य नाम का उच्चारण करने से, नहीं तो दिव्य कथा का श्रवण उच्चारण करने से वो जीव का मुक्ति का कारण बनता हो। हाँ, जैसे अब चाबी है, तो ऐसे करेंगे ना रूम खुल जाता है, ऐसे करने से रूम लॉक हो जाता है, करेक्ट ना। तो इसलिए मैंने उदाहरण दिया, एक चाकू का उदाहरण दिया। चाकू अच्छा है बुरा है वो उसके यूज़ के ऊपर है। हाँ, जैसे डॉक्टर के हाथ में अच्छा है, चोर के हाथ में बुरा है। इस तरह आपके मुख से निकलने वाले शब्द है, क्या हम बोलने वाले हैं। जैसे अगर कोई सिनेमा गाना गाते हैं उनके अंदर रजोगुण बढ़ता है। जैसे कोई रॉक म्यूजिक सुनता है, क्या बोलते हैं उसको, पॉप, पॉप भी है और भी दूसरा रैप, रैप बोलते हैं। हाँ? हाँ? कोई रैप सुनता है उसके हाथ में शोल सब कंधा हिलता है, ऐसे ब्रेक डांस करते हैं लोग, करेक्ट है ना। हाँ? तो वो अगर आप भगवान के संबंध में कीर्तन सुनते हो, क्लासिकल म्यूजिक सुनते हो, एकदम सद्भावना को जगाता है, करेक्ट है ना। तो इस तरह आप देखेंगे किस तरह का गीत हम सुनते हैं, किस तरह के किताब पढ़ते हैं। गीत भी एक शब्द है, किताब भी क्या है, रिकॉर्डेड साउंड, उसको लिख कर रखा है, वो भी साउंड है। इस तरह फ्रेंड्स के साथ हम मैत्री जोड़ते हैं, वो भी मुंह से कुछ बोलते हैं, उससे हमारा शुद्ध होता है, नहीं तो अशुद्धि बढ़ता है, करेक्ट है ना। किस तरह का एसोसिएशन, क्या सुनते हैं, द टाइप ऑफ फ्रेंडशिप्स यू कीप, द टाइप ऑफ सॉन्ग्स यू सिंग, द टाइप ऑफ बुक्स यू रीड, ये सबसे। इसलिए एक शब्द आपको बंधन कारण बनता है, बंधन का कारण बनता है, दूसरा शब्द आपको मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए वो दोनों के बारे में बातचीत की हमने। वेरी गुड, थैंक यू। और कोई? हाँ, इधर एक हाथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने ये भी बताया गॉसिप और रूमर के बारे में, फिर आपने एक पास्ट टाइम बताया शमंतक। हाँ, करेक्ट। सत्यजीत कैसे हो पास्ट टाइम से दो महत्वपूर्ण पॉइंट निकाला मैंने उस लीला से। तो दो पॉइंट बता सकते हैं वो लीला से। एक पॉइंट क्या खास पॉइंट था? एक तो रूमर का और गॉसिप। एक तो रूमर का था कि उन्होंने अज्यूम किया कि कृष्ण जी ने, हाँ, सत्यजीत ने क्या किया, अफवाह फैलाया, क्योंकि उसको पूरा मालूम नहीं था कि क्या सत्य बात है क्या गलत मालूम नहीं था। तो उस समय मैंने 3 बकेट का उदाहरण दिया। क्या है 3 बकेट्स? यस बकेट, नो बकेट, नॉट श्योर बकेट। तो सारी दुनिया में हम लोग इधर उधर से सुनते हैं, वो किस बकेट में आता है? नॉट श्योर। लेकिन उसको ही लोग बोलते रहते हैं, करेक्ट है ना। जो चीज़ हमको ठीक तरह से मालूम नहीं है उसको लोग फैला देते हैं, वो गलत है, करेक्ट है ना। तो हाँ, उसके बारे में बोला। अभी जामवान के जीवन से अनेक चीज हमने बताया। एक तो बताया कि वो जब क्रोधित हुआ, इसके कारण क्या नहीं कर पाया वो, हाँ, पहचान नहीं पाया भगवान को। तो उसके बाद पहले तो कटुवचन बोला भगवान को अपने मुंह से, बाद में प्रार्थना किया। इसलिए वो लीला बोला मैंने, क्योंकि उस लीला में दोनों उसके मुंह से निकलते हैं। जब कटुवचन बोला भगवान को समझ नहीं पाया, जब भगवान की गुणगान किया तब भगवान को समझ पाया वो, करेक्ट ना। इसी तरह सत्यजीत जो है वो भगवान के बारे में गलत बोला, अफवाह फैलाया, लेकिन वो सत्य बात नहीं था, लेकिन इस तरह पर सारे द्वारका में फैल गया। हाँ? उसके बाद में उसको किसी ने खून किया, एक शतधन्व नाम का व्यक्ति सत्यजीत को भी खून किया बाद में, आप देखेंगे, क्योंकि बड़ा अपराध हुआ उसके कारण। तो इस तरह आप देखेंगे कि इस लीला में हम सीखते हैं कि कभी भी अनजाने से अफवाह मत फैलाओ, वो महापाप है। क्योंकि अगर सत्य बात नहीं है, हमको भी प्रूफ नहीं है हमारे पास, कुछ भी लोगों को बोलना नहीं चाहिए। बोलना चाहिए कि मुझे मालूम नहीं, ऐसे बोलना अच्छा है, करेक्ट ना। वो सीखा हमने। और भगवान एक राजा के पदवी में थे, इसलिए उन्होंने निरूपण भी कर दिया। और श्यामन मणि उधर से लेके आकर सबके सामने सभा में सत्यजीत को दे दिया उन्होंने। बोला सत्यजीत क्या एक्चुअली हुआ, सत्य बात क्या है, वो भगवान ने सबको सुनाया। उसके बाद वो सुनने के बाद लोग भी शांत हो गए। क्योंकि कभी कभी सत्य बात न जानने के कारण लोगों के बीच में अनावश्यक बातें बढ़ते जाते हैं, करेक्ट है ना। इसलिए करेक्ट चीज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जानना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, यू कैप्चर्ड दैट वेरी गुड पास्ट टाइम। एंड देन और कोई हाथ ऊपर ना, उधर माता, एक माता हाथ ऊपर, उनको माइक दे दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि आपने बताया
क्या दो तरह के लोग होते हैं, गृहमेधी और गृहस्थ। हाँ इसके बारे में बताएं। करेक्ट गृहमेधी कौन है? करेक्ट। गृहस्थ के बारे में क्या बोला मैंने, गृहस्थ के बारे में? वैष्णव का संग करते हैं, स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, भगवान की का नाम जाप करते हैं, भगवान की बात सुबह उठते हैं, करते हैं, वो सब। सुबह कितने बजे उठते हैं? जल्दी उठ जाते हैं, करेक्ट है ना? तो उसका वो एक आश्रम है, इसलिए उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। हाँ गृहमेधी वह है जो भोग विलास में रहते हैं, मतलब जो भगवान की तरफ न देखकर अपना। हाँ, उसका एक उदाहरण दिया, कोल्लू का बैल जैसे। कोल्लू का बैल ऐसे गोल गोल होता है, उनके लिए घर ही उनके लिए सब कुछ है। हाँ? घर की बहुत खाओ पियो मजा करो मरो, उनको बाकी कुछ जीवन का उद्देश्य नहीं है उनका। हाँ? वो गृह में थी, वेरी गुड, वो अच्छा पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। और क्यों गृह में गृहस्थ का बात आया, अभी गृह में भूल गया मैं बोलने के लिए ये पॉइंट। गृह में जो होते हैं वो ईर्ष्यालु होते हैं, वो बाकी लोगों को देखे, वो देखो वो ब्रांडेड कपड़ा पहनी है, हम लोगों के पास जो कपड़ा है सब सिंपल है, तो उनका गाड़ी देखो हमारी गाड़ी देखो, ऐसे वो लोग दूसरों को देखकर जलते हैं। हाँ, एक दिन एक 2 BHK में एक परिवार रहती थी, वो सुबह उठकर 7 बजे वो स्त्री खड़ी थी वो उनके बालकनी में, पति को बुलाया, इधर आओ। पति आया, देखा उन्होंने, दिख रहा है क्या उधर? देखा क्या है, वो दिखा एक बड़ा बंगलो था उधर। हाँ बंगलो है, उसके निकट बहुत अच्छे बगीचे भी हैं, बहुत अच्छा कंपाउंड है। वो बोली ऐसा मत सोचो कि मैं दिखा रही हूँ तुमको, ऐसे बनाना है, इसलिए तो दिखा रही हूँ, तो मैं दिखाऊंगी क्यों तुमको? वो बोला हमारे वेतन में इतना बड़ा बंगलो कैसे होगा? बोले आप भी करो कसरत है। तो इस तरह आप देखेंगे तो गृहमेधी जो होते हैं वो अपने भौतिक परिस्थिति को और बेहतर करने के लिए बहुत कसरत करते हैं, एक दिन मर जाते हैं, उनको जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं होता उनको कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, किधर जाना है। आध्यात्मिक जीवन उन्नति के लिए वो लोग काम नहीं करते हैं वो लोग। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, गांव में एक व्यक्ति था, उसके पास एक झोंपड़ी था, किसान था वो सोचा कि इस झोंपड़ी को मैं बहुत बड़ा इमारत बना दूंगा। इमारत बनाते बनाते उसके 10-20 साल बीत गया, इमारत बन चुका, एक हफ्ता रहा, अगले हफ्ते गुजर गया वो। हाँ? लेकिन बनाया इमारत, लेकिन रहने के लिए टाइम नहीं था उसके पास। हाँ? क्योंकि इस दुनिया में आप बहुत बड़ा इमारत बनाओगे तो इमारत रह जाएगा, तुम चले जाओगे, लेकिन वैकुंठ में एक इमारत बनाओगे तो उधर हमेशा के लिए रह सकते हो। हाँ? इसलिए शास्त्र बताते हैं कि तुम्हारे शाश्वत पदवी के लिए, कुछ कल्याण के लिए काम करो। हाँ? जैसे आप लोग इधर आते हो कार्यक्रम में, तो हरिनाम का जप, प्रसाद का सेवन और भक्तों का संग, गीता भागवत का अध्ययन, भगवान के श्री विग्रह की पूजा आराधना और संस्कृति के साथ जीवन जीना इत्यादि, तो आप लोगों को ये उन्नति का मार्ग है। हाँ? आप लोग आगे बढ़ रहे हो और भगवत धाम की ओर आप आगे अग्रसर हो रहे हो आप। हाँ? अगर ये सब नहीं करेगा कोई इंसान, खाता है पीता है सोता है भोग विलास करता है और अपने प्रगति करता है भौतिक जीवन में, लेकिन अचानक एक दिन छूट जाएगा प्राण, तो पता नहीं किधर जा रहा है वो, है ना? प्रभुपाद जी ने बोला एक व्यक्ति को, देखो तुम बड़े कार तुम्हारे पास है करके तुम अहंकार करते हो और कार से आसक्त हो गए, तुम अगले जन्म में इसी कार में तुम एक कॉकरोच भी बन सकते हो। ऐसे बोला उन्होंने, जब तुम मरोगे। क्यों? क्योंकि उसको अटैचमेंट है किसके साथ? गाड़ी के साथ। आप उस गाड़ी में ही रहोगे लेकिन एक कॉकरोच रहोगे। ऐसे बोला, करेक्ट है ना? इसलिए हम लोग समझना चाहिए कि ये शरीर, अभी जो देह मिला है मनुष्य शरीर, ये हमेशा के लिए मनुष्य शरीर नहीं रहेगा। कभी जानवर, कभी पंछी, कभी मनुष्य, कभी पेड़ पौधा, हमारे कर्म के अनुसार। अगर आप लोग इतना अच्छा कर्म कर रहे हो, आपको अगले जन्म में भी देवता का शरीर मिल सकता है, नहीं तो वैष्णव के घर में शरीर मिल सकता है, नहीं तो वापस भगवत धाम लौट भी जाएंगे हम। हाँ? अगर पूरा शुद्ध हो गए तो। इस तरह भक्ति करने वालों के लिए भगवान बता रहे हैं कि उनका भविष्य बड़ा उज्ज्वल है उनके लिए। भगवान बताते हैं अगर आपके अंदर भौतिक इच्छा भी क्यों ना हो, हाँ? भगवान बोलते हैं अगर मेरे भक्तों में अगर भौतिक इच्छा हो, मैं उनको स्वर्ग भेजता हूँ। क्यों? स्वर्ग में क्या होता है? उनके भौतिक इच्छाओं का पूर्ति हो जाता है। किसी को इच्छा है कि मुझे अच्छा खाऊं, बहुत समय के लिए खाऊं, ठीक है खाओ, अच्छा बासमती राइस खाओ, उधर उधर जाकर स्वर्ग में। किसी को स्त्री पुरुष का आकर्षण है, छूट नहीं पाता है, तो उधर जाकर अप्सराएं हैं, वो गंधर्व हैं, गंधर्वी हैं। इस तरह किसी को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट, ठीक है चलो, वो भोग विलास इत्यादि करके उनका भौतिक इच्छाएं मिट जाता है। उसके बाद बताते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। भगवान बताते हैं कि अगले जन्म में वो ब्राह्मण के घर में, नहीं तो बहुत बड़े धनी खानदान में उसका जन्म मिलता है अगले जन्म में। क्यों? ब्राह्मण के घर में उसको संस्कृति प्राप्त होता है, और धनी खानदान में उसको
खाने पीने की व्यवस्था की चिंता नहीं है उसको, तो उधर अच्छे संस्कार में जुड़कर वो भक्ति आगे बढ़ाएगा भक्ति, और मेरे धाम में आ जाएगा, ऐसे भगवान बताते हैं। तो मतलब पतित लोगों के लिए, पतित भक्तों के लिए भी भविष्य बड़ा उज्जवल है। लेकिन अगर भक्त पतित नहीं होता है, गंभीरता से अभ्यास करते हैं, तो इसी जन्म में हम लोग भगवत धाम लौटने के लिए बहुत संभावना है। वी हैव ग्रेट चांस टू गो बैक टू गॉड हियर। और कुछ पॉइंट याद है आपको क्लास से? किधर है? हाँ, After that, आपने बताया कि what is the best inquiry? So we should do the inquiry about Lord and purpose of life, and then you give the example of Parikshit Maharaj that who asked the 4 question कि मरने वाले का धर्म क्या है, साधारण लोगों का धर्म क्या है, what to do and what not to do. here प्रभु, here, हाँ, करेक्ट। उसके बाद तो उन्होंने 4 प्रश्न पूछा, उन्होंने उस 4 प्रश्नों का जवाब देते हुए पहला जवाब किस प्रश्न का दिया उन्होंने? हाँ, इसमें क्या, किसके बारे में सुनना नहीं, किसके बारे में बोलना नहीं, किसके बारे में स्मरण नहीं करना, ये पूछा उन्होंने। उस समय जवाब क्या दिया? वो जवाब हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। जवाब क्या दिया आपको याद है? श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नाम संति सहस्रशः। हजारों विषयों के बारे में लोग क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। मैंने अनेक उदाहरण भी दिया उसका, किसको याद है? हाँ, अभी पंछियां बातचीत करते हैं। हाँ, और कोई? करेक्ट, अनेक चीजें, करेक्ट, वेरी गुड, वही बताया मैंने। ऐसे अनेक विषयों के बारे में लोग बात करते हैं आपस में। क्या वो अगला टॉपिक था, उसके बारे में और भी विस्तारित रूप से बात किया हमने। तो इस तरह समय की बर्बादी हो जाता है उसमें। इसके कारण जैसे प्रभु जी ने बोला, तुलना करना, मेरे कपड़े देखो, उसका कपड़ा देखो, हमारा गाड़ी देखो, उनका गाड़ी देखो, उनका गाड़ी से हमारा गाड़ी बेहतर है, उनका घर में वो 2 BHK में रहते हैं, हम 3 BHK में रहते हैं, इस तरह बातें करना। उनका बेटा देखो, उसको 8वां रैंक मिला, हमारे बच्चे को 4था रैंक मिल गया। इस तरह तुलना करने से मैंने एक श्लोक बोला, याद है आपको? पर स्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निंदति। किसी के स्वभाव और कर्म के बारे में हमें क्या नहीं करना चाहिए? आलोचना नहीं करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, किसी को याद है? अगर हम इस तरह दूसरों के स्वभाव और कर्म के बारे में बातचीत करते हैं, क्या होगा? माता को याद है? बोले माता। हाँ, हम भगवान हरि से दूर चले जाएंगे और इस दुनिया के असत्य अभिनिवेश, असत्य दुनिया में हम डूब जाएंगे उसमें, ऐसे बताया। भगवान हरि को भूल जाएंगे हम। हाँ, उन चीजों में पदार्थ में नहीं। हाँ, यश प्रभु जी बोलिए। हाँ, यश प्रभु जी। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके बारे में बताया, और प्रिंसिपल था चोरी। करेक्ट, जैसे हम ऑलरेडी एवरीथिंग इज देयर, पर हम आविष्कार करके हमें लगता है करेक्ट, हम ले लेते हैं नोबेल प्राइज, लेकिन हमने क्या किया? भगवान के एनर्जी से कनेक्ट करके हमने कुछ आविष्कार किया। अगर वो वेव्स होते ही नहीं तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्रेडिट किसको देना चाहिए? भगवान को देना चाहिए। ऐसे बोला जाम्बवान ने, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ बोला उसने। वेरी गुड। और कोई पॉइंट किसी को? माता वही मात इधर, ये लोग आपने बोल देना एक बार, नहीं बोला, इनको दे सकते हैं, इनको एक चांस दीजिए। जो लोगों ने नहीं बोला उनको पहले चांस, ठीक है? उसके बाद बाकी। हाँ, आपको याद है 5 याद है आपको? पहला पॉइंट क्या है? पहला फर्स्ट पॉइंट, अनद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम एंड देन स्वाध्याय अभ्यासनम। करेक्ट। हाँ, हमें किसी को दुखित नहीं करना चाहिए हमारे बोलचाल से, सत्य बोलना चाहिए, हितकारक बोलना चाहिए, प्रिय प्रेम से बोलना चाहिए, और शास्त्र पढ़कर बोलना चाहिए। परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ, कटवांगा कुड परफेक्ट इज लाइफ। उन्होंने परफेक्ट कर दिया एक मुहूर्त में। आपके लिए तो 7 दिन बहुत है, हम भागवत कथा सुन पाओगे। उनको एनकरेजमेंट किया उनको। वेरी गुड। इसका मतलब है हम भी दूसरों के साथ बोलते समय एनकरेजमेंट देना चाहिए उनको। हाँ, हमारे
our word should be encouraging them to come closer to Krishna, not drive them away from Krishna. एक व्यक्ति गया एक गांव में, मैंने सुना कि उसको भी प्रवचन देना था नए लोगों को। उसने क्या क्या पीपीटी बनाया 28 नरकों का। बोला कि तंबाकू खाओगे उस नरक में जाओगे। सब बुढ़े लोग बैठे थे, सब डर के मारे, डर के अगले क्लास में आए ही नहीं कोई। ये वो नरक में भेज देगा हमको। तो हम जो प्रवचन देते हैं लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए भगवान के निकट आने के लिए, दूर जाने के लिए नहीं। वेरी गुड। और कुछ पॉइंट किसी को याद है? हाँ, इसका याद है, बच्चे को याद है, उनको दीजिए माइक। व्हाट्स योर नेम? मुकुंद। मुकुंद इज गोइंग टू शेयर अ पॉइंट। मुझे आप कह रहे थे कि वो जो ज्यादा काम करते हैं उनका सिर भी हट जाता है, तो इरिटेट बोलते हैं। क्यों? कौन इरिटेट होता है? ज़्यादा काम करने से 16 घंटे काम करते हैं। ओ राइट 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 राइट। क्योंकि शरीर देखिए, आप अगर कार को 5000 किलोमीटर चलाया, कार घर वापस लौटे हैं, कार गर्मा गर्म हो जाता है, करेक्ट है ना? उसके बाद उसको गैराज में लेके जाकर कूल डाउन करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, ओवरऑलिंग करते हैं। इसी तरह हमारा शरीर भी एक यंत्र है। हाँ? अगर हम कसरत करते 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 रहते हैं, शरीर का भी गर्मी बढ़ जाता है, करेक्ट है ना? कैसे हमको पता है कि गर्मी बढ़ गया? स्ट्रेस बढ़ जाता है, हाँ वो गर्म करता है। और होने के बाद कैसे पता है कल चल गया कि गर्म है? मुंह से जो निकलेगा अपशब्द निकलेगा, सबके साथ झगड़ा करेगा वह। हाँ? इस तरह। तो उसको ठंडा करने के लिए क्या बोला मैंने उपाय, याद है आपको? क्या है? हाँ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये महामंत्र जपने से क्या होता है मैंने बोला, किसी को याद है? हाँ, इनको दीजिए, माता को दीजिए, उनको दीजिए, और ये प्रभु जी को भी दीजिए, इन दोनों को देते हैं। बोलिए माँ। हाँ, हमारे चित्त बिकम्स शुद्ध है, चित्त को शुद्ध करता है, करेक्ट। और आपका? हाँ, मन साफ होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, करेक्ट, एग्जैक्टली। हम समय की सदुपयोग भी करते हैं, करेक्ट। वेरी गुड, थैंक यू। एंड अब प्रभु जी आपने बोला था कि जैसे लोगों को लगता है कि चैंटिंग करने से उन्हें टाइम नहीं मिलेगा, बट चैंटिंग अगर करेंगे तो बेकार के सब बेकार की चीजों पर हम समय का, हाँ, तो बेकार काम में जिसके ऊपर हम समय बिताते थे पहले, वो सब छूट जाएगा, अनावश्यक चीजें, करेक्ट है ना? मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैंने विद्यार्थियों को देखा है, जो लोग नाम जप करने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग बहुत समय बिताते हैं सिनेमा जाने में, इधर उधर घूमने घामने में, करेक्ट है ना? क्लब्स में जाते हैं, होटल में जाते हैं, अनेक चीजें करते हैं, समय की बर्बादी उसमें इससे भी ज्यादा होता है। इधर तो नाम जप करने से थोड़ा कंट्रोल में आता है मन और इंद्रिया इत्यादि, संयमित करके हम सही दिशा में लेके जा सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैंक यू। हाँ, उनको प्रभु जी को दीजिए। किसका? हाँ, याद है आपको चारों? ए फॉर बी, सी, वेरी गुड, हरि बोल, करेक्ट, वेरी गुड। और पीछे वो प्रभु जी के पास कुछ उनको आंसर, उनके पास दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। So प्रभु जी, एक मुझे नई चीज पता चली अगेन अबाउट हरिनाम, कि कैसे हरिनाम लेने से मन शुद्ध होता है, जैसे लोगों ने बताया। तो आज उसका रीजन पता चला कि हमारा मन जो है वो गंदगी से भरा पड़ा है। और जैसे एक बच्चा टॉयलेट पे जाने के बाद अपनी मम्मी का नाम लेता है और माँ आके क्लीन करती है, तो भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान सोचते हैं कि नाउ इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। करेक्ट, हरि बोल, बढ़िया बोला, अच्छा पॉइंट याद किया इन्होंने, वेरी गुड पॉइंट, वेरी नाइस। हाँ, वेरी गुड। और कुछ पॉइंट याद है किसी को? हाँ, पीछे वो माता ने बोल दिया ऑलरेडी, अच्छे पॉइंट बोला, आप ही बोलिए एक पॉइंट। मुझे एक पॉइंट आपने बोला कि मतलब ये मैंने बहुत दिनों बाद में फिर से सुना कि हरिनाम इज लाइक अ रोर ऑफ लाइफ। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम हरिनाम ले रहे हैं तो इट्स लाइक नॉर्मल, ऐसा कुछ बाहर बाकी जो नाम ले रहे हैं, करेक्ट, किसी और का नाम ले, वैसा नहीं, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जो भी बुरी चीजें वो अपने आप भाग जाते हैं, और जो अच्छी चीजें वो अट्रैक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, उनको दीजिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए।
सो आपने बोला व्हाट नॉट टू टॉक, तो फालतू की बातें नहीं करना, ये वो। करेक्ट। So general society में people misunderstand somebody who's very quiet. And you will be quiet because you don't talk about this, you don't talk this. करेक्ट। And generally people feel that you are unfriendly, you don't like them. It's just a misconception. So I don't think, because you would have faced it, because you are practicing definitely all of this. एक्चुअली हमको क्या करना चाहिए, अगर आपके ऑफिस में आप देखेंगे कि 10-20% लोग अच्छे हैं, कहीं भी जाए, अगर स्कूल में आप देखेंगे क्लासरूम में अगर 100 विद्यार्थी हैं उसमें से 20 विद्यार्थी अच्छे हैं, पहचान लेना चाहिए कौन क्या बात कर रहा है, किस श्रेणी के हैं, क्या स्टैंडर्ड के हैं। जैसे अभी बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, आपने देखा होगा जो बगुला जो है बगुलाओं के साथ उड़ते हैं, काक काकों के साथ, हंस हंसों के साथ, कुत्ते कुत्तों के साथ रहते हैं। कभी आपने देखा कुत्ता झगड़ा करके बिल्लियों के साथ रहता है? कभी देखा आपने? नहीं। उनके इस तरह अगर आप भक्त हो, पुण्यात्मा हो, तो पुण्यात्माओं को ढूंढना चाहिए हमको। ऐसे जो लोग हैं उनके साथ अगर मैत्री जोड़ लिया, जब आप इसमें लोग ग्रुप ऐसे बनाकर बात करते हैं, आप भी ग्रुप बना लेना अच्छे लोगों का, उनके ग्रुप में अच्छा ही बात होगा, करेक्ट ना? और वो भी अच्छे बात सुनना भी चाहेंगे, आप उनको भगवान के बारे में कुछ बोल सकते हैं, वो सुनेंगे भी, क्योंकि वो पुण्यात्मा है, उनका वो रुचि है, इंक्लिनेशन ऐसा है। तो यथा रुचि यथा मति बताया गया है। हमारे टेम्परामेंट, हमारे टेस्ट, ये दोनों देखना चाहिए। अगर किसी का टेम्परामेंट है, अच्छा टेम्परामेंट है उसका, और उसका टेस्ट आध्यात्मिक रुचि है, नहीं तो कम से कम वो पायस होना चाहिए। ऐसे लोगों का पहले से मैत्री जुड़ना चाहिए, क्योंकि आप इम्पायस लोगों के साथ जो पुण्यात्मा नहीं है, ऐसे लोगों के साथ आप जोड़ेंगे ना मैत्री, उनके संग में आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा आपका संग। वो बोलेंगे अरे हमेशा तुम चुप रहते हो, बोलेंगे वो। इसलिए आपके कलीग्स में अच्छा मैत्री ढूंढना भी बहुत आवश्यक है। देखिए आपके 3 कनेक्शन है आपका। एक है आपके घर के पड़ोस में रहने वाले। अभी ये सब इस कॉलोनी से कितने लोग हैं आपके कॉलोनी के इधर, इनके कॉलोनी के कितने लोग हैं इधर? ब्लड रिलेटिव्स आने एक बार दूर रहते हैं, उनको सिर्फ फोन में बात करना होता है। सो यू कैन एक्चुअली टॉक फॉर वर्किंग रिलेशनशिप, once in a week or once in 3 weeks, whatever you may call them. You ask about their family, ask about their health, ask about when they're coming, how is everything going on, ask about the children. These things we can talk, because अब ऐसे रिलेटिव्स के साथ हमारा संबंध भी होता है। ऐसे मैं भी अभी साधु के ड्रेस में हूँ, फिर भी मैं मेरे बहन, मेरे पिता, माता, इनके साथ संबंध हम रखते हैं, टच रखते हैं। ऐसे नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू कैन कीप इन टच। और अगर आपसे प्रेरित होकर वो भक्ति में भी आने की संभावना भी है, करेक्ट है ना? तो आपके 3 वैरायटी के लोग हैं, इसको बोलते हैं स्वबंधु मंडल। हाँ, एक है आपके ब्लड रिलेटिव्स, दूसरे आपके कॉलोनी के, और तीसरे आपके कलीग्स इन ऑफिस। ये तीनों में अच्छे लोग ढूंढिए आप। यू कैन मेक अ लिस्ट, कौन कौन कनेक्शन करने के लिए उचित है। ऐसे कनेक्शन कर लिया तो आपका खुद का नेटवर्क हो जाएगा, उस नेटवर्क के अंदर ही रहने का कोशिश करते हैं, ठीक है? यार मुझे भी जाना है 7:30, क्योंकि आई टुक अ ट्रीटमेंट फॉर द बैक पेन इन जनवरी, एंड डॉक्टर ने बोला मुझे 8:30 बजे सो जाने का, और उठता हूँ 2:30 बजे उठता हूँ सुबह, 8:30 to 2:30. I have to get up early. We can reach in 1 hour. Yeah, thank you all very much. शिल प्रभुपाद की, गौर भक्ता वृंदा की। किसी को लगता है कि किसी खास विषय छूट गया रिवीजन में, जो बोला नहीं है माता उनको देना माइक देना। क्या खास विषय छूट गया? खास विषय नहीं, पर आपने भगवान को जो ग्लोरीफाई किया था कि भगवान के लिए आपने सर्वात्मा यूज किया था, भगवान करेक्ट, हाँ करेक्ट। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, इसलिए उनकी गुणगान करनी चाहिए। वेरी गुड, अच्छा कंक्लूजन, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की।